के बाद भी किसी सिखाना उसमें वो आना नहीं कर सकते। एक्चुअली ईसीसी इसमें सीएस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप उसमें भी कर सकते हो। हाँ, इनफैक्ट उसमें मैं देख रहा था डेटा ज़्यादा अच्छा ईसीसी वाले में है, आना वाले में डेटा नहीं है उतना अच्छा। हाँ, तो आप उसको भी कर सकते हो प्रैक्टिस, कोई इशू नहीं है। और योर इन्फॉर्मेशन आप लॉग इन करके हाना स्क्रीन पे देख सकते हो, बट उसमें कोई डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा जब ईसीसी और उसमें देखोगे। सो फंक्शनली स्क्रीन्स आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, माई स्क्रीन इज, होप माई स्क्रीन इज Yes. विजिबल। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टार्ट विद इक्विपमेंट। तो यस्टरडे हमने फंक्शनल लोकेशन के बारे में देखा था। टुडे वी विल सी व्हाट इज इक्विपमेंट एंड उसको सिस्टम में कैसे यूज करते हैं। देन ऑल्सो सीरियल नंबर, हाउ दैट इज लिंक टू इक्विपमेंट। सो वो सब आज के सेशन में देखेंगे। सो फर्स्ट लेट अस डू सम थ्योरी, देन वी विल सी इन सिस्टम। Okay, so what is an equipment, or what is the purpose of an equipment? Basically to manage data from maintenance perspective. So आपको जिस भी मटेरियल का या जिसका आपको if you want to maintain you from the service point of view, you need to create a equipment. Okay, so for any maintenance activity, this equipment is required. Then perform individual maintenance task for the object, जो आपके maintenance related task हैं, for that it will be required to keep a track of maintenance task. So it will keep a track of all the maintenance that you have done. The history will be there, and then you can use this data for analysis later on. Then or equipment can be installed and dismantled at the functional locations. So like yesterday, I explained that a functional location is a place where your machinery is set up. So वहाँ पे हमारे equipments भी लगे हो सकते हैं functional location में भी। There might be some equipments also. Then implementation consideration. So when we are creating a equipment master record, so what it does, individual data is to be managed for the object. So जिसका data हमें manage करना है, that we can check in the equipment master. So maintenance task क्या क्या करने हैं, that details we can see. So a record of maintenance task performed for the object must be kept. Then technical data on the object is to be collected. Okay, so let us move uh, forward. So this is again a definition key, what is equipment. So for any maintenance part, we have to create that material as a equipment. Okay, so when we will see in system, then it will be more clear. So this is just a Yes. theory part, so I'm just running through this. Yes, sir. Okay, and then equipment, why it is termed as equipment, because अगर उसको assets करेंगे तो it will be confused with asset management. अगर उसको material करके बोलेंगे then it will be confused with material management. So that is why SAP has given a new name for this service thing, equipment. So when someone says refer as equipment in SAP, it means he is talking about maintenance activity. तो ये उसके that is why they have named it as equipment. Okay, now equipment has master data. जो equipment master data है, this is at the client level. This means if there are multiple companies if you know about the SAP org structure, so client and then company code is there. So if there are multiple company codes, multiple companies in SAP within the same group,
So equipment is at the client level. So equipment, when it is created, this is applicable to all the multiple companies. Okay, so equipment is at the client level, and then it has different subtypes of data, like general data, then plant maintenance data. Like when you create customer master, it has sales area data, general data, company code data. So similarly, जब equipment master आप create कर रहे हो, it will have some general data which is applicable to entire equipment, then some plant location specific data or sales specific data. So there are different views in the equipment master. Then in the equipment master, we will maintain the serial number mapping and the partner data and the configuration data. Okay, so let's now see in system, then again we'll come back to this. इसमें हम ऑर्डर भी कोई नंबर भी मेंटेन कर सकते हैं ना इक्विपमेंट में ऑर्डर नंबर वो तो आपका जब आप वर्क ऑर्डर क्रिएट करोगे उस टाइम पे उसमें रहेगा ना, क्योंकि हाँ, इक्विपमेंट तो आपका एक कॉमन मास्टर डेटा बन गया. So again, the path to go is go to logistics, then go to customer service, and then go to equipment. Okay, so this create option is there. So you can create this from IE01 or IE08. ओके, yesterday इसे इसमें ये भी जैसे फंक्शनल लोकेशन था, ये भी 08 था और 01 दोनों से क्रिएट कर सकते हैं. सो इन इन हाँ, दोनों सेम है. एक्चुअली क्या डिफरेंस है, व्हेन यू क्रिएट फ्रॉम CS मॉड्यूल तो वो IE08 उसको यूज करते हैं, और जब उसमें PM में क्रिएट करेंगे देन IE01. सो मतलब ट्रांजेक्शन कोड डिफरेंट है बट दे आर कॉलिंग द सेम स्क्रीन. आप किसी से भी क्रिएट कर सकते हो, इट विल क्रिएट सेम. सो नाउ इफ आई गो टू क्रिएट ऑप्शन. ओके, सो इक्विपमेंट कैटेगरी पूछेगा, देन वैलिड ऑन मतलब कब से वो वैलिड हो रहा है ये इक्विपमेंट. सो इक्विपमेंट कैटेगरी, इफ यू S इज फॉर योर कस्टमर इक्विपमेंट. सो जो CS से रिलेटेड है इट विल बी अ कस्टमर इक्विपमेंट because we are selling that. When it is in case of PM, this will become your normally machines, internal machines. So let me first show you one existing one, then we will create a new one. So ये already एक existing equipment है. Okay, so IE03 में जाके मैंने ये दिया, and then I have opened this master data, equipment master. So here you can see these are the different tabs or different views are available here. So equipment, ये आपका equipment number हो गया which system will automatically generate internal numbering के base पे. अगर external numbering set करी है then manually we have to enter. So then this is the description, then this is status, valid from, this is valid from and valid to date. Valid from जिस डेट पे आप create करोगे from that date, to by default system will take this date, we can change this date. Then here general data में we can maintain some information. Object type, like इसमें further subdivision कि ये computers का है, तो we will select which is the matching object type that we can select here. Then उसका weight कितना है. Acquisition value means your purchasing value, मतलब आपने ये equipment कितने का खरीदा है. So let's say ये laptop है, this is for 1000 euros. Dimensions will be entered. Then acquisition date of purchase आ जाएगी यहाँ पे. Manufacturer किससे लिया है, कि Dell है, HP है. Then your model number and all the details. So this is kind of data entry work which इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर डेटा में जाओ. हाँ, स्ट्रक्चर डेटा में जाते हैं. स्ट्रक्चर डेटा में क्या किया है कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम्म, हमारे इधर ना स्ट्रक्चर डेटा में उसका मटेरियल कोड रहता है वो उसकी
सब असेंबली। वो आपको स्ट्रक्चर में यहाँ पे मतलब जिस फंक्शनल लोकेशन के लिए में ये लिंक्ड है ये इक्विपमेंट वो यहाँ पे आ रही है, और आप शायद यहाँ से ये बोल रहे होगे स्ट्रक्चर ग्राफिक स्ट्रक्चर लिस्ट, वो ऊपर से जाके आपको पूरा ऐसे दिखता है क्या? हाँ नहीं, मैं बताता हूँ, क्लोज कर दो। हम्म। ये जो क्लास ओवरव्यू की साइड पे है ना, उधर उधर से आता है क्लास ओवरव्यू। क्लास ओवरव्यू, नहीं नहीं नहीं, ये क्लास एंड डॉक्स ये वाला? नहीं, इक्विपमेंट नंबर के ऊपर क्लास ओवरव्यू है, अच्छा ये वाला, ओके ओके। उसके लेफ्ट साइड में जो स्ट्रक्चर है, अच्छा ओके। वहाँ से वो इक्विपमेंट का पूरा बिल ऑफ मटेरियल उधर। ओके ओके, अभी ये कुछ प्रोसेसिंग मोड में चला गया है ये। और एक पूछना था, जैसे कि अभी मैं भी एक ICT में ज्वाइन कर रहा हूँ ना, तो उधर वो लोग ना ERP यूज कर रहे हैं, बट दे आर गोइंग टू ये कर रहे कि ERP टू SAP कर रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन मोड कितना रहता है? मिनिमम 1-2 इयर्स का प्रोजेक्ट रहता है। हाँ वो डिपेंड करता है कि मतलब कंपनी किस साइज की है। छोटे प्रोजेक्ट्स मतलब 6-7 महीने में भी हो जाते हैं, बट अगर बिग कंपनी है तो फिर वो प्रोजेक्ट मतलब 1 ईयर तो मिनिमम जाता ही है। देन डिपेंडिंग अपॉन डेटा साइज क्या है, कितना मतलब इंटरफेस वगैरह कितना यूज है। क्योंकि उनके बहुत सारे वर्सटाइल प्रोडक्ट्स थे, तो मैंने जहाँ तक सुना था कि उन्होंने लास्ट ईयर कुछ किया था, बट वो हो नहीं पाया। बट उनका जो भी ऑर्डर देन इंडिया जो ओवरसीज है, हम्म उधर उन्होंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन चालू किया है। वो शायद कुछ बोल रहा है 24 को होगा करके बोल रहे, तो वो होने के बाद वो फिर इधर इंडिया में करने वाला है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि उस टीम में थोड़ा अभी से थोड़ा। हम्म। ओके ओके। किर्लोस्कर में ही है क्या, मतलब कि दूसरी कंपनी? नहीं नहीं, मैं अभी क्या हो गया, ITT करके कंपनी में, अच्छा अच्छा। उधर मुझे जॉब मिल गया, तो उधर अभी सब ओके ओके ऑफर एक्सेप्ट किया है उनका, अभी सुबह में जाऊंगा। ओके ओके। ठीक है, अगर आपको प्रोजेक्ट अगर अच्छा ऐसे मिल जाएगा करने का तो दैट हाँ विल बी अ गुड एक्सपोजर। ओके, ये वाला आप बोल रहे हो स्ट्रक्चर लिस्ट? हाँ, उसको क्लिक करने के, हाँ वो जो, हाँ उसको क्लिक करेंगे तो उसका बिल ऑफ मटेरियल आ जाता है मोबाइल पे। हाँ ये इसका ऊपर वाला ये आपका इक्विपमेंट है, इसके अंदर में ये मटेरियल है। हाँ, इसके नीचे ये उस सब हाँ डिटेल्स। ये बॉम आ गया उसका, उसमें क्या क्या है उसका बिल ऑफ मटेरियल। राइट। ठीक है। देन ओके, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जनरल वी हैव डन। लोकेशन में आपका ये एड्रेस डिटेल्स आ गया। देन इन ऑर्गेनाइजेशन आपका ये कंपनी कोड और प्लानिंग प्लांट, जिस प्लांट से बेसिकली हमने सेल किया है वो प्लांट यहाँ पे आ जाएगा। उसको एज अ प्लानिंग प्लांट हमें बनाना होगा, so that will be here. Then planner group, planner group is your group of material people जो प्लान करते हैं। then your work center जो वर्क सेंटर है इससे रिलेटेड। एंड देन कैटलॉग प्रोफाइल। स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया कि दिस फंक्शनल लोकेशन के अंदर में पे ये बेस्ड है, मतलब यहाँ पे ये बेस्ड है आपका ये सिस्टम जो है। तो एंड पहले हम फंक्शन लोकेशन करते हैं या इक्विपमेंट? फंक्शनल लोकेशन मतलब एक लोकेशन हो गया, और उस लोकेशन के अंदर में हमारा ये इक्विपमेंट मतलब वहाँ पे बेस्ड है। ये इस सिचुएशन में जो ये केस है कि ये फंक्शनल लोकेशन है, ये इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट परचेजिंग, तो कोई परचेजिंग डिपार्टमेंट के अंदर में ये इक्विपमेंट रखा हुआ है जिसका हमें मेंटेनेंस करना है, लाइक दैट। देन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका एसडी रिलेटेड डेटा आ गया जिससे सेल्स किया है। सेल्स और आपका सेल्स एरिया और सेल्स ऑफिस वगैरह आ गया इसमें। हाँ, नाउ यू हैव दिस सीरियलाइजेशन, सीरियल डेटा जो लिंक रहता है सीरियल नंबर से, तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर इसका असाइन करते हैं। सो दिस इज योर मटेरियल नंबर। सीरियल नंबर एक अलग ट्रांजेक्शन में क्रिएट होता है, दैट इज योर IQ01। IQ01 में जाके हम यहाँ सीरियल नंबर इसका क्रिएट करेंगे।
और उसके बाद में जब ये क्रिएट हो जाएगा तो देन ये सीरियल नंबर यहाँ पे हमने असाइन किया हुआ है, तो मटेरियल यही है। तो फॉर दिस इक्विपमेंट नंबर इस सीरियल नंबर से मैप्ड हो जाएगा। सो बाकी तो इसमें सब ओके है। देन गो टू वारंटी एंड पार्टनर। ये वाला जो टैब है इसमें फर्स्ट वन इज फॉर कस्टमर वारंटी, और जो नीचे वाला है ये हमारा वेंडर वारंटी, जैसे हमने कुछ अगर बाय किया है इन दैट केस। ओके। तो हमने जो मटेरियल सेल किया हुआ है उसमें कस्टमर वारंटी में हम यहाँ डालेंगे कि हमने जो इक्विपमेंट सेल किया हुआ है उसकी वारंटी कब तक है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। एंड देन इन दिस यू हैव इनहेरिट वारंटी और पास ऑन वारंटी। तो इनहेरिट वारंटी मतलब ये है कि जैसे अगर ये किसी वो इक्विपमेंट का पार्ट है, जैसे मान लीजिए एक मेन इक्विपमेंट है, उसके अंदर ये एक सब इक्विपमेंट है। अगर ऊपर वाले इक्विपमेंट में ऑलरेडी वारंटी एक्टिव है, तो जो उसका नीचे का प्रोडक्ट है उसमें उसके पार्ट पे ऑलरेडी वारंटी एप्लीकेबल हो जाएगी। नहीं, थोड़ा फिर से हाँ, बताइए। जैसे मान लीजिए आपकी एक एक मोटर है, डीजल मोटर है कोई, मान लीजिए, ओके। ठीक है। हाँ। उसका एक मेन इक्विपमेंट नंबर बन जाएगा, ठीक है। ओके। उसके अंदर में आपका कोई स्पेसिफिक कंप्रेसर लगा हुआ है ओके। उस मशीन के अंदर में। तो अगर हाँ। आपकी वारंटी मेन प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है तो उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनके हाँ। लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके। वो मतलब इन इनहेरेंटी वारंटी। हाँ, इनहेरिट और पास ऑन वारंटी है, तो मतलब पास ऑन में आपका जो नीचे वाले हैं उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा, और इनहेरिट मतलब अगर ऊपर वाले में एप्लीकेबल है तो इसमें इस वाले में ऑलरेडी एप्लीकेबल हो जाएगा। और पास ऑन में जो इसके अंदर जो और फर्दर इक्विपमेंट्स लगे हैं उसमें उसमें पास ऑन हो जाएगी वारंटी, लाइक दैट। सो स्टार्ट एंड एंड डेट सिंपली मतलब अपना से कब तक वारंटी है। और मान लीजिए डिफरेंट पार्ट्स नहीं है, एक सिंगल इक्विपमेंट है, तो सिंपली स्टार्ट एंड एंड वारंटी सफिशिएंट। ओके, नाउ ओके, लेट मी गो बैक टू। हाँ, फिर इसमें आपका ये गो टू लॉजिस्टिक्स, योर सी एस इक्विपमेंट। तो क्रिएट हमने देख लिया, चेंजेस आई क्यू 02 हो जाएगा और डिस्प्ले 03 हो जाएगा, I03। ओके, देन एक लिस्टिंग करके होता है, एडिट लिस्टिंग, यहाँ से मतलब रेफरेंस इक्विपमेंट मटेरियल नंबर डाल के एज अ रेफरेंस कुछ बल्क में क्रिएट किया जाता है, मतलब मल्टीपल अगर इक्विपमेंट्स क्रिएट करने हैं, so then that time it is used, so we can skip this one। ये अपने लिए इतना रेलिवेंट नहीं है। फॉर अस वी शुड नो दिस, क्रिएट, चेंज एंड डिस्प्ले, ये तीन चीजें। एंड लेट मी कम बैक टू प्रेजेंटेशन। ओके, सीरियल नंबर, डेटा एंड क्रिएटिंग अ पीस ऑफ इक्विपमेंट हमने देख लिया कैसे क्रिएट करना है। IE01 में जाके आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर IE08 में जाके कर सकते हो, दोनों सेम सेम है। देन इंटरनली अगर आपने नंबर रेंज इंटरनल डाल रखी है, देन सिस्टम विल जनरेट द नंबर रेंज। अदरवाइज एक्सटर्नल है तो देन वी हैव टू गिव सेम, लाइक जैसे आप कस्टमर क्रिएट करते हो, सेम कॉन्सेप्ट, इंटरनल एक्सटर्नल नंबर रेंज। तो एडिट लिस्टिंग, लाइक आई एक्सप्लेन यू, कि अगर आपको बल्क में क्रिएट करना है इक्विपमेंट, देन वी यूज दिस लिस्ट एडिट एडिटिंग ऑप्शन। चेंजिंग अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, अगर आपको कुछ चेंज करना है, इक्विपमेंट ऑलरेडी बन गया है उसमें कुछ डेटा चेंज करना है, तो IE02 में जाके हम वी कैन डू द चेंजेस। चेंजिंग द मेंटेनेंस प्लांट, जैसे मेंटेनेंस प्लांट हमने असाइन कर रखा था, इफ यू हैव नोटिस्ड, सो अगर मेंटेनेंस प्लांट हमें चेंज करना है, सो दैट वी कैन चेंज हियर। सभी 1200 प्लांट से है मेंटेनेंस। इन फ्यूचर कभी अगर हम इसका प्लांट चेंज करना है तो देन वी कैन चेंज फ्रॉम दिस स्क्रीन। डिस्प्ले इक्विपमेंट इज IE03, वी कैन गो एंड चेक देयर। उसी में जाके हम सर्च भी कर सकते हैं, लेट मी शो यू।
जैसे आप I03 में गए और आपको कोई स्पेसिफिक सर्च करना है, इसको आप एक्सपेंड करो, देन दिस रिपोर्ट और सर्च काइंड ऑफ ऑप्शन विल कम। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे इक्विपमेंट के बेस पे सर्च कर सकते हो, या फिर मटेरियल, सीरियल नंबर, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। लेट्स से मैं विदाउट कोई फिल्टर डाले एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो मुझे इसमें जितने भी इक्विपमेंट्स या जो जो क्रिएटेड है वो सारे दिख जाएंगे, तो ये सब सिस्टम में क्रिएटेड है। कौन सा ट्रांजेक्शन यूज कर मैं IE03 में जाके सर्च किया मैंने। ओके। हाँ, IE03 में ही सर्च ऑप्शन आ गया, तभी इसमें ये सारे क्रिएटेड हैं। एंड विच एवर आई वॉन्ट टू सी, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, जैसे इन केस आई सिंपली वॉन्ट टू सी हाउ विच ऑल आर क्रिएटेड, तो यहाँ से जाके आई कैन चेक। कैसे गया था मैं, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, देन यू विल गेट दिस ओके। दिस रिपोर्ट और दिस सर्च क्राइटेरिया। तो इस पे ड्रिल डाउन करके फिर दबाए तो हाँ, ड्रिल डाउन करके F8 दबाया तो आ जाएगा, यस। अगर कभी ऐसे स्क्रीन भी आ सकती है, तो ऐसे स्क्रीन अगर आ जाएगी, देन यू सेलेक्ट इक्विपमेंट बाय लिस्ट या इक्विप बाय सीरियल नंबर, मतलब इनमें से आप ऑप्शंस कोई भी यूज कर सकते हो। अभी ये वाला सिस्टम दे रहा है इक्विपमेंट बाय इक्विपमेंट। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट सर्च ऑप्शंस। देन डीएक्टिवेट और एक्टिवेट का ऑप्शन होता है, जैसे आपको इक्विपमेंट अगर यूज में नहीं है तो वी कैन डीएक्टिवेट इट और वी कैन एक्टिवेट इट। सो दिस इज मोर फ्रॉम द PM साइड, अपने लिए इतना नहीं है। सिमिलरली डिलीशन फ्लैग और रीसेट डिलीशन फ्लैग, सब ऑप्शंस हैं, दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट हियर। हाँ, डिस्प्ले यूसेज टाइम आपको यहाँ पे दिखेगा, मतलब मटेरियल जो आपने यूज किया है उसकी यूसेज डिटेल्स। यूसेज लिस्ट में इफ यू गो हियर यू कैन सी कि वैलिड फ्रॉम, वैलिड टू डेट कब है, क्या है उसकी, प्लांट कौन सा है। सो बेसिकली उसका यूसेज कहाँ कहाँ पे है वो दिख जाएगा इस इन इन हियर। देन स्ट्रक्चर लिस्ट एंड स्ट्रक्चर ग्राफिक, दैट स्ट्रक्चर लिस्ट हमें यहाँ से दिख जाएगी। एंड ग्राफिक वाला आपको स्ट्रक्चर ग्राफिक और स्ट्रक्चर लिस्ट यहाँ पे मतलब वो दिख जाएगा। इसमें आपका मतलब जो हायरार्की है आपके इक्विपमेंट की वो दिख जाएगी, क्या कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं। देन यू हैव इक्विपमेंट एट फंक्शनल लोकेशन, अगर फंक्शनल लोकेशन में लाइक वी हैव डिस्कस्ड हमारे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, सो दिस इज दैट सिनेरियो। हायरार्किकल इक्विपमेंट, हायरार्किकल में जैसे लेट मी शो यू एन एग्जांपल, जैसे कि ये सुपीरियर इक्विपमेंट है, ये मेन इक्विपमेंट हो गया। जैसे कि हम जनरेटर वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, तो जनरेटर विल बिकम योर मेन सुपीरियर इक्विपमेंट, मेन इक्विपमेंट। फिर उसके अंदर में जो अलग अलग पार्ट्स हैं, कि उसकी मोटर हो गया, दैट इज वन सब इक्विपमेंट। फिर उसके अंदर कुछ कंप्रेसर होगा, दैट इज अनदर सब इक्विपमेंट। फिर उसको फर्दर जितना ड्रिल डाउन, मतलब जितना मेंटेन करना है, दैट हायरार्की ऑप्शंस आर देयर। देन प्रोडक्शन रिसोर्स टूल्स और टूल्स, यानी PRT भी बोलते हैं इसको बेसिकली। ये आपके जो टूल्स वगैरह जो आपके नॉर्मल मेंटेनेंस में यूज होते हैं, दिस इज दैट कि आपको जो नॉर्मल मेंटेनेंस एक्टिविटीज के लिए जो जो टूल्स चाहिए आपके सर्विस इंजीनियर्स को, या डेली डेली सर्विसेज के लिए जो डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स या रिसोर्सेज होगा, दैट इज क्रिएटेड एज PRT इन सिस्टम। Then fleet as a equipment, this is not from, this is more from PM side, कि जैसे अगर आपकी फ्लीट है ट्रक्स की या बसेस की, जो भी आपकी व्हीकल फ्लीट है, उसको भी हम एज अ इक्विपमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड वी कैन डू द ट्रैकिंग, मतलब डिफरेंट जो इक्विपमेंट एक्टिविटीज़ है। तो इसके लिए IE01 में यहाँ पे फ्लीट का एक ऑप्शन होता है, आई थिंक या दिस वन F, व्हीकल वाला ऑप्शन लेके, तो जो भी हमारी व्हीकल्स हैं जिसका हमें मेंटेनेंस करना है, दैट वी कैन क्रिएट डायरेक्टली, बट दैट इज मोर फॉर इंटरनल मेंटेनेंस ऑफ PM का पार्ट है।
ओके। हाँ, या एंड देन इक्विपमेंट फंक्शंस, या फंक्शंस देखते हैं। लेट अस फर्स्ट सी दैट थिंग, इसका कॉन्फ़िगरेशन। ये तो हमने फ्रंट एंड में देख लिया है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है एसपीआरओ में। लेट मी शो यू दैट पार्ट आल्सो। गो टू प्लांट मेंटेनेंस एंड सीएस, टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स, ये इक्विपमेंट्स में यहाँ पे आएंगे। देन फर्स्ट इज हियर इक्विपमेंट कैटेगरीज, मेंटेन इक्विपमेंट कैटेगरी। इसमें जैसे कि जो हमें फ्रंट एंड पे ऑप्शंस दिख रहे थे, सो दिस लाइक पी क्यू जेड, ओके। मशीन्स है कि मशीन विथ सीरियल नंबर A, B, C, D, different kind of equipment categories are here. So this is one thing. Then number ranges. Okay. Views, कौन सी views हमें रखनी है? हाँ, let's keep all this same. फिर यहाँ पे नंबर रेंजेस, यहाँ नंबर रेंजेस में आपका ये कंट्रोल होगा कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। अगर ये टिक में मार्क्ड है तो एक्सटर्नल नंबर रेंज। ओके, सो ये सेम कॉन्सेप्ट है जो आपका कस्टमर मास्टर में यूज होता है। ये टिक हो जाएगा तो दिस बिकम्स योर एक्सटर्नल। एनआर स्टेटस क्या रहता है वो? एनआर स्टेटस मतलब जो आपका करंट जो नंबर रेंज चल रहा रहेगा ना, ये। ये ओके। जैसे अभी करंट नंबर रेंज अभी 706 चल रहा है, हाँ। और इस वाले में 007 चल रहा है। तो जो लेटेस्ट वाला, तो लेटेस्ट वाला है वो चल रहा है, इस मतलब दैट इज शोन हियर। अगर मुझे एग्जिस्टिंग में चेंज, एक मिनट तो थोड़ा हाँ हाँ, एग्जिस्टिंग में चेंज करना है तो मुझे इंटरवल्स में करना है। समझा नहीं मैं एग्जिस्टिंग में। फिर मुझे इक्विपमेंट नंबर का एक नया सीरीज में देना है, मतलब लेट्स से 999 के आगे देना है। तो मुझे अगर नया क्रिएट करना है तो कैसे बनेगा? हाँ, नया क्रिएट करना है तो आपको इसमें जाएंगे। गिट। हाँ, यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन आएगा अभी, बट इट्स नॉट शोइंग हियर। एक न्यू का ऑप्शन आएगा, वो हमें नया नंबर रेंज उसमें ऐड करना रहेगा। आई गो टू मेंटेन, ओके। यहीं पे आना चाहिए था, इसमें 05 करके देन वी विल ऐड दैट न्यू नंबर रेंज। और जो सीरीज हमको मतलब ओवरलैप नहीं करना चाहिए, अगर ओवरलैप करेगा तो सिस्टम वो सेव नहीं करने देगा। हाँ, देन क्या, असाइन यूजर प्रोफाइल। ओके, तो इसमें then assign user profile to equipment category. So this one by one, I mean you can see इसमें इतना वो नहीं है। And allow assign, assign partner determination procedure to equipment category। पार्टनर डिटर्मिनेशन कौन सा इसमें यूज हो रहा है? देन ठीक है, तो इसमें आपको मतलब मेनली आपको इक्विपमेंट क्रिएट करना आना चाहिए। एंड हमें सीरियल नंबर वगैरह हम कहाँ पे असाइन कर रहे हैं, दैट फ्रॉम CS पॉइंट वी शुड नो। सीरियल नंबर वाला जो टैब है, ये दिस वन। फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो ये अपना जिसमें हमने जिस सेल्स एरिया से उस सेल किया है, जिसका हमें चेक करना है, दैट विल बी मेंटेन्ड हियर। और देन आपका ये वारंटी वारंटी वाला रिलेवेंट है, दिस वी हैव टू नो। सो फ्रॉम इक्विपमेंट मतलब बेसिक क्या है इक्विपमेंट, दैट वन शुड नो, ये हमें पता होना चाहिए। एंड कैसे क्रिएट करते हैं इक्विपमेंट, और अगर जैसे सर्च करना है इक्विपमेंट या सीरियल नंबर कैसे क्रिएट करना है, तो दैट ऑल थिंग्स
we should be aware of. फिर ओके, तो कल अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कल देखते हैं, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। एंड आई थिंक आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं अभी। चलेगा। आप मुझे ना थोड़ा, एक्चुअली आप बोला था ना सुबह किया था बट नहीं हुआ था। मुझे थोड़ा जल्दी अगर सेशन भेज दोगे ना तो क्या करता है मैं मतलब